Sat means eternal, Chit means fully knowledgeable, and Ananda means fully bliss. Now, the third, bliss Tattva, belongs to Lord Ramchandra, belongs to Radharani. And Srila Prabhupada very clearly made distinction between what the common knowledge and commonality in understanding Rama Avatar. But most of the Kathakaras, they miss the point. But according to Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami doesn't want us to miss that point. Otherwise, as much katha you can elongate, stretch out, that much confusion is created. The spiritual understanding of a kathaka depends upon what is his tutelage, how he learned. Otherwise, just talking verbatim on the basis of simply familiarity, it will breed contempt. Popularity is not a criteria to understand what common people would understand. Vox populi. Vox populi means the opinion of the common people. Now, how can you take opinion of common people to be correct and spiritually unfounded? So, when we see through the realized purports of Srila Prabhupada, Prabhupada clarifies with the help of our predecessor Acharya. It means the knowledge coming down from our predecessor Acharya must be the strength to understand properly the Ramakatha. In the 9th canto of Srimad Bhagavatam, we are come to what Sukadeva Goswami instructs to Parikshit Maharaj. Parikshit, you have heard this katha many times. I'm not going to waste my time in elongated narration of the activities. But I want to clarify the spiritual nature of the Ananda Tattva. Ananda. Ram means Ananda, reservoir of pleasure. But in the character and the Leelas, did Ram give anybody pleasure? Nobody. People wanted the pleasure, but sorry, I have to run away. My father said so. So, Sukadeva Goswami was not much interested to waste time. And incidentally, Parikshit had only 7 days to live. And this is 9th canto. All right? So it means at least 4 days are over. Only 3 days are remaining. Right? So why to waste time? You have heard so many times. I'm not going to waste time. I'm going to hit right on the topic.
of Ram Tattva. When people fight, oh, Ram comes first, then Krishna comes. But Krishna made the arrangement, Ram, you go first and I'll come later. They don't understand that. Generally, in 4 yugas, after Satya Yuga, Dwapar Yuga comes, and then Treta comes. But in this, after 27th cycle of the 4 Mahayugas, in Vaivasvat Manu's reign, Krishna is supposed to appear once in a day of Brahma. And then he's finicky. He plays tricks before even his birth. Before even his birth. Did anybody do any specific order giving, specific instructions that they have to follow before birth? He is unborn. So, who was giving the order? Krishna. Krishna told Treta Yuga, you go first, then I'll come as Dwapara. And Treta Yuga has to observe, and Ramchandra has to appear, right? Just to do leelas, but which is supposed to be very ideal for the human beings to follow. So, just to maintain the human race in the most progressive state of Krishna consciousness, the Lord has to become an ideal example. That he has to follow the order. It will come through elders. Order was supposed to be carried out. Prana jaye, phir vachan na jaye. And Tulsidas did not explain this spirituality much in Ram Katha. Even though it is specifically written by him, I am writing this narration of Ramcharitra for my internal pleasure, not for yours, not for yours. Swanta Sukhaya. He clarifies. The Swanta Sukha he has understood, but he could not give anybody the Swanta Sukha. Where is the practice? Who is following? Tulsidas. He did not leave any disciplic succession. Right? People believe, but without proper understanding. Thus, there is always fight between Ram Bhaktas and Krishna, so-called Krishna Bhaktas. But Prabhupada clarified so much that we do not have any doubt about Ram Bhakta. This Ram Bhaktas do not know what is meant by Ram. And Prabhupada gives us a definition of Ram Tattva. Ramanti yoginaha satyanande chidatmani iti Rama pade nasho parabrahma abhidiyate. The status of Ram means all pleasure giving, for whom the yogis are meditating for years within their heart with strict discipline.
Satyananda, and it is factual pleasure that they have to receive. Not just make believe. The followers of Tulsidas use this fake pleasure. They love to recite the verses, chopais and dohas. Even politicians make their own chalisas in the same, as if. But it is a degradation. It is not glorification of Lord Ram, rather glorification not even for Hanuman, but their own glorification. The first one to write was Lalu Prasad Yadav. जब तक समोसा में रहेगा आलू तब तक राज करेगा लालू. He is doing Raj in jail. Now he is on bail. So, chalisas, Lalu chalisas. And he wants his glorification to be introduced at the school level. Yeah. But this definition, Ramanti Yogina Satyanande Chidatmani. Chit Atmani. All spiritual nature is required. Sat Chit Ananda. So, all the three factors of spirituality are included. But that is the function of the yogi, to take pleasure within their own selves by becoming spiritual. Then you get the real Anand. But the story does not give us Anand. Story gives everything other way around. People virtually cry reciting Tulsi Ramayana, at least Sundarkand and other little softy things, But they love Ayodhya Kand better. So do you think the war has given them more pleasure? No. Even Hanuman and other monkey soldiers, they were so powerful. But that is the potency of Sandhini Shakti. Hanuman was most intelligent. That is the potency of Samvit Shakti. But where is Ladini potency? Sita was kidnapped. It means in Ramayana the pleasure was kidnapped. The pleasure potency was kidnapped by envious mentality. So naturally it was Maya Sita. Nobody can enjoy Maya. Even Ravan could not enjoy Maya. He has to be away. So Sat Chit Anand, three factors we have to employ. We have to cultivate within us by performing devotional service. And that is the position of Atmaram. A Ram again. In Chaitanya Charitamrita, it is explained. How many? 18 times Chaitanya Mahaprabhu explained the meaning of the verse. Tell me something. Don't fight. Oh, that is someone. But Chaitanya Mahaprabhu 18 times, okay.
That's good. Atma aramascha munayo nirgandha arpya urukrame kurvantim ahaitukim bhaktin ittham bhuta ganohari. Oh. Atmaram. One who is taking pleasure within is called Atmaram. So Rama Tattva is spiritual. And we have to understand spiritually. Janma karma cha me divyam evam vetti tattvataha tyaktva deham punarjanma naiti mamiti iswar. We have to understand through the eyes of divinity, not with our material eyes and material experiences, then manufacture something called happiness. This is Satyananda Chidatmani. Chit Atma. Always conscious of the spiritual nature of the self. Yogi cannot even deviate from their external senses and make a meaning out of it. They are supposed to be so strict in every discipline. In Krishna consciousness, we don't have to be strict like other yogis. Because Krishna is telling Sarvottam Yogi, who Yoginam api sarvesham madgatina antaratmana shraddhavan bhajate mam same yuktatama mata. Yuktatama. By performing devotional service only we can become yuktatama, connected with Krishna so intimately. So Sukadeva Goswami proposed, and within 2-3 slokas he described Ramayana. But then he picked up few passages. When Lord Ramchandra was piteously crying, "Hi Sita, where are you?" When Ram kidnapped her, right? He was like a handpicked husband. Yeah. Sukadeva Goswami says he's like a handpicked husband. Ramchandra is crying and he is criticizing him. Sukadeva Goswami uses this kind of words. Handpicked husband. And Prabhupada explains, understand. The love behind it is not material. Therefore, to support his statement, he says, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that such nature is called Yasya Prema Vasyatsa Swabhava, whose nature is dictated by pure love. So, Ram is the Supreme Personality of Godhead and he is full of love. Therefore, he is Rama. But the Prema Vasyatsa Swabhava means the Swabhava becomes subordinate by the overwhelming love for Sita. And it is spiritual in nature. It's not like handpicked husband. So, even though the usage of word in Srimad Bhagavatam is Ramchandra is crying like a handpicked husband, but this is the ecstasy of like the gopis, where in deepest separation of Lord Krishna. But that is the stage of the highest ecstatic feelings. Krishna reciprocates to the gopis
na parayaham. Sorry, I cannot repay. This is beyond my control. Only you enjoy with your own loving sentiments more than me. So where is the question of crying? Where is the question of moroseness, dejection? It's completely purified to give ecstasy, not pain. Because they were out of the material world, and therefore there is no pain in spiritual world. So like that. Similarly, Ramchandra kicked out Sita even though she was pregnant by some hearsay of a third-class living entity. Ramchandra knew that even in Treta Yuga people would not understand. And these are the recent time he just did all the leelas, and he was, of course, ruling for 13,000 or 11,000 years. And then he submerged himself into Saryu. But he would go during this rain period incognito to see how people are understanding during his presence that he is intending for Ramarajya, means peaceful, everything. It is a hype. They think Ramarajya, but they do not understand Ramarajya. Even today, they want to bring the Ramarajya, and unfortunately, our Modi ji is not following Vaishnavism. And how about all this understanding? But he will support everybody. Fine. But Parikshit Maharaj is told to concentrate his understanding on this Ram Tattva. So those who are interested in spiritual love, then they will, go for Ram Tattva. And therefore, Chaitanya Mahaprabhu glorified who? Who was following Lord Rama, and he was chanting only Ram mantras? Murari Gupta. So Murari Gupta was told by Chaitanya Mahaprabhu just to test. Murari Gupta, everybody chants Hare Krishna, and you will not miss Ram in it. Right? Yes, my dear Lord, you are my Lord and Master, I must. He would not deny. But then he would not be able to sleep. And he will be in ecstatic separation. Have you seen separation in ecstasy? They don't understand. So, Ramanti yogina satyanande chidatmani iti Rama padenasha parabrahma abhidhiyate. This is the status of parabrahma. Abhidhiyate means you better, this is established fact. Now how can we transgress this fact and make a meaning out of it from simply our material senses? Therefore, it is very difficult to understand Lord Shri Krishna even in the form of Lord Ramchandra. His Maryada Purushottam, but the Purushottam does not have any Maryada.
Is it not? Purushottam, why should he have Maryada? Sorry. It is to be understood. When you call somebody the Supreme Personality of Godhead and then you confine him according to your intelligence, that's not fair. So, it's all right. No, I will have to raise it, then it's paining. So, the purpose is then how to understand this avatar, Ramadi Murti Shukalani Aminatishtan Nana Avataram Akarot Vipuneshu Kinta. Krishna's Swayam Samahapa Paramapomanayo. Krishna was warning every time. If you want to understand it, then you come to my level. Means, first you have to have evam vetti, means divyam vetti. Can we become divyam? If you want to know Krishna, then we have to become divine. Because Krishna is divine. Krishna is to be understood on the platform of divinity, and so Ramchandra also. The principle doesn't change. And even Lord Nrsimha. Sanatana Goswami says that Lord Nrsimhadev and Lord Ramchandra, they are also Purna avatars. We know only Krishna is Purna avatar. No, they are also Purna avatars. Because a Purna avatar can be understood by the perfect, means Purna process, and that is divine. Not material. So our understanding falls short of divinity. So when are we going to understand Krishna or Rama? When are we going to get the transcendental pleasure, love of Godhead? People are anxious to go back home, back to Godhead, because everything is described and they are getting stuck. That yes, I can do within one life. But Maharaj, can I do? What do you think about me? Then what would I say? Prabhu, just the beginning. Start feeling you need to cry. Desperateness. See? Where is the cry? No. When we are hungry, we are crying. When we are filled with hunger, we are still crying. But this cry does not reach to the deaf ears of Lord Krishna. Oh, deaf? Yeah, materially. Krishna doesn't have deaf ears. Who is in every atom. Within the atom and without the atom. Andantarastha paramanu chayantarastham govindamadi purusham tamaham bhajami. So, Rama Tattva is the ultimate Tattva. People are fighting still. When you see the
Mahamantra given in Kalisantrana Upanishad of Yajurveda. This Mahamantra is for all the times, every Kali Yuga. Even Krishna comes or Krishna doesn't come. Right? And it starts with Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. So those who are anxious to fight, they say, look, Ramchandra's name is first. All right? So therefore, Ram is greater than Krishna. Ram is Bhagavan. And that is the kind of prevailing mood of the people of physical, material separation. Chaitanya Mahaprabhu came and put it other way around. He's mischievous. Yes. Chaitanya Mahaprabhu did very, very tricky job. Because for every Kali Yuga, this Mahamantra is given, and everybody chants Hare Ram, Hare Ram. They are very, very obedient to the Shastric authority, but they don't understand one thing. That in every year, in every Kali Yuga or prior to the Kali Yuga and the end of Dvapara Yuga, never happens. So Krishna doesn't come. Only that's for some specific, unique position of Krishna. He told Dvapar, go. Hey Ram, go first. Balaram, you expand and get the job done. So Ramchandra comes in Treta Yuga. So, because Lord Ramchandra preceded before Krishna, he is how much effort they have done to establish Ram as the Supreme Personality of Godhead than Krishna. They even try to defame Krishna in characterization. See, Ramchandra is so strict with one wife, but who follows? Who follows? Nobody follows. They were not following even before 100 years. But it was not this kind of population. Oh. And because they did not follow, the population increased like anything. Even before independence, what was the population of India? It has mushroomed threefold. It was 35 million, I think, before independence. And now, 135. Was it due to following Lord Ramchandra? No. But still, they have right for their sentiments, but they cannot justify the sentiments spiritually. Therefore, we have to understand something very spiritual. Even though Lord Ramchandra knows that Sita is always pure, and if she would have raised her eyebrow, Ravana would have turned into ashes.
That kind of spiritual fire Mother Sita has. But want to help serve Lord Ramchandra in this Leela. She agreed. And therefore, it was difficult for me to come out from the cave of Sita yesterday. I went in. Never thought that I would go. Sita was well protected by how many things. Lakshman Rekha was there to protect her. The gufa itself is so much wonderfully built. Sorry. Some handwork is there. So, those who have gone, can you raise hands, please? How many of you have gone in Sita caves? Wow, most of them. How many did not go? Raise hand. Everybody went? कितने लोग गए सीता की गुफा में? और कितने लोग नहीं गए? हाथ ऊंचा करो. 1, 2, 3. माताजी सभी गई थी. चिकन. क्या घबराहट हो गई? वहां लिखा है डायबिटीज वाले भी नहीं जाए. फिर भी हम गए थे. सही, बच्चों को तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन माताजी इत्यादि. I was supposed to speak in Hindi. Oh my God. I hope something is revealed. All right. तो हुआ क्या? सीता इतनी बड़ी सुरक्षा में थी. वो सभी दैवी सुरक्षा कही जाती है, कोई भौतिक सुरक्षा नहीं. लक्ष्मण रेखा भी आध्यात्मिक रेखा है, भौतिक रेखा नहीं है. यदि भौतिक ऑर्डर होता लक्ष्मण का, तो सीता यदि सामान्य स्त्री होती तो लक्ष्मण रेखा पर खुद जल जाती. सही ना? लेकिन उसको नहीं, रावण को ही था. तो क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पे था ही नहीं, यानी कि भौतिक स्तर वाले उल्लंघन नहीं कर सकते. भौतिक बुद्धि सीता को छू नहीं पाती. तो उसका एक्सप्लेनेशन चैतन्य महाप्रभु को साउथ इंडिया ट्रिप में गए थे, तब माया सीता रावण चुरा गया, ऐसा उल्लेख आता है. चैतन्य महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा. वो सारा एक्सप्लेनेशन ले आए कि हम सारी लीला आध्यात्मिक स्तर पे होती है और हम भौतिकता में समझाने का प्रयत्न करते हैं. तो कितना आसमान जमीन का फर्क होता है. लेकिन एक सिद्धांत रजू करने के लिए हमें ये सारी बातें कहनी पड़ती हैं कि देखो, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेत्तियो तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुहर्षुन. भगवान के दिव्य कार्यकलाप है, जो दिव्य है, उसे हमें वही स्तर पे जाना जा सकता है. यानी कि हर एक जीव को दिव्य बनने की आवश्यकता होती है.
हाँ, जीव तो दिव्य होता है अपने नग्न स्वरूप में, लेकिन हम नग्नता से खुद शर्माते हैं, इसीलिए कपड़े पर कपड़े पर कपड़े ही चढ़ाते हैं। चमड़ी भी कपड़ा है शरीर पर, और हर एक कोशिकाओं पे जीव होते अपने आप को ढांक रखती है। तो शरीर तो कितने जीवों का बना है, अरबों खरबों जीवों का बना है। तो हर एक जीव क्लेम कर सकते हैं मेरा शरीर, मैं हूं। नहीं, वो लोग बेचारे चुप हैं। एक मूर्ख जीव ही सत्व रज और तमोगुण के महत्त्व में छुपाए हुए अपने आप को सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार, जिंदगी नहीं 84 लाख योनि में वो फंसा रहता है। एक मनुष्य योनि में ही हमें वहां से छूटने की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं कि चलो वानप्रस्थाश्रम आ गया, माता को छोड़ दो। अरे माता को छोड़ने को बताया नहीं। हाँ, हस्बैंड वाइफ दोनों वानप्रस्थी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन यदि पुरुष को संन्यास लेना है, और वो भी गुरु आज्ञा के बिना नहीं ले, क्योंकि सन्यासी वर्ज्य है, प्रचार के अर्थ लेना होता है। हाँ? तो यदि वो सन्यासी बनना चाहता है तो बड़े बेटे के पास उसके पत्नी को छोड़ सकता है। औरतों को सन्यास की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि उसकी सुरक्षा उसके बंधन में है। हमें बंधन लगता होगा, लेकिन आध्यात्मिकता में बंधन तो नहीं रहता। तो स्वयं अपने घर में ही वो आध्यात्मिक बनकर अपना उपाय कर। पहले कलयुग के पहले सन्यास वो मोक्ष धर्म में आता है, क्योंकि मनुष्य को 4 पुरुषार्थ होता है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो मोक्ष के लिए तो सन्यासी बनना पड़ता है। लेकिन कलयुग में क्या धर्म, क्या काम, सब दूषित। ये 4 जो कर्तव्य है मनुष्य के लिए, तो क्या इसमें कोई भी एक पवित्र कर्तव्य है? धर्म भी दूषित हो गया। हाँ? इसीलिए तो भागवत में धर्मो प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मसा, लात मार करके निकाल। प्रभुपाद जी के लात मार के। कोई धर्म को लात नहीं मार सकता, लेकिन हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। फिर तो वही, हम लोग जब अमेरिका गए, हमने कभी सोचा नहीं था कि धर्म पीछे हमारे आएगा। प्रभुपाद जी पहुंच गए थे। 5वें दिन ही हम भक्तों का परिचय होने लगा। हम बस सफाई वहां से चालू हो गई। नहीं तो हर रोज हम भगवत गीता का एक अध्याय का पाठ करते थे। कितने सालों किया होगा, जब हाई स्कूल में थे तब से चालू किया था। हम भी चिन्मय आनंद के चक्कर में पड़े थे। जब मैं मास्टर्स की डिग्री करता था तो 1966 में वो अमेरिका आए थे। सॉरी नहीं, पहले बड़ौदा आए थे, जब वहाँ से करते। तो उनका 3 दिन का सेमिनार था, और वो भी भक्ति योग पर। मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं किया। मैंने कहा समय बर्बाद किया। मैं क्लास छोड़ के आता था। क्या हो? मारो गोली। अपना चालू रखो। यदि मैं इंडिया में ही रहता तो हमारा नंबर नहीं लगता।
सही, आप लोग सद्भागी हो। लेकिन मेरे लिए तो वहां जाना था, इसलिए प्रभुपाद जी पीछे आए। वो हमसे आगे पहुंच गए, लेकिन हमारे पीछे भक्त लोग पड़े रहे हैं कि ये मुर्गी बराबर है। नहीं तो हम लोग एक पिंजड़े में 10-10 मुर्गियां थी। शुरुआत में तो हम सब साथ में बिना पैसे गए थे, लाए थे नहीं, तो हमारे कई सारे सहयोगी थे, मित्र बन गए। वैसे आवश्यकता के अनुसार मित्र भी बनते हैं, और अनावश्यक शत्रुता भी आती है। लेकिन भक्त लोग हमारे पास आने लगे इन लोगों के बीच में ही, तो वो लोग मुस्कुराने लगे, देखो उसने तो 5 दिन में मित्र बना दिए। वो मेरे लिए प्रसाद लाते थे, बैक टू गॉड हेड मैगजीन लाते थे। 1971 की बात कर रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे मैं भी आगे बढ़ा, लेकिन भक्तों की ही कृपा है। प्रभुपाद जी के साथ हमारा बहुत तुच्छ समय का ही, लेकिन लव मात्र साधु संग। जो कुछ हुए हैं आज वो हमारे गुरु भाइयों की कृपा है। बहुत सारे गुरु भाई, एक नहीं तो मैं चमचा बन जाता, सही ना। तो हाँ, प्रभुपाद जी के दर्शन हुए हैं, हमने सुने हैं। कई बार तो लेट ही पड़ा। 1975 में हम इंडिया आए थे, वृंदावन आए थे। हम इस कौन गेस्ट हाउस में रुकना चाहते थे, फिर भी हमें पता नहीं, क्योंकि उस समय कोई संपर्क नहीं। हम 1974 में लाइफ मेंबर बने थे, और हमारी दादी माँ चल बसी थी, तो उसके मान में मैंने सोचा मैं हरिद्वार जाऊं। तो दिल ही ठीक है, तो वहाँ गुजराती समाज का बिल्डिंग है। हमें किसी ने कहा वहाँ जाके रुकना, आपको सब कुछ, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। वहाँ से बस उपड़ती है। तो हमने 2 दिन हरिद्वार में सामान इत्यादि वहाँ छोड़ रखे जितना आवश्यक, क्योंकि 1 दिन की सफर थी आगरा की ताजमहल देखने की, लेकिन बीच में आता था वृंदावन। 1 घंटे का एक घंटे का हमें वहाँ बस का रुकना होता था। हमारे उस समय तो मैं काफ़ी रिसर्च में था, तो हमारा सेक्रेटरी ने कहा, if you go to Vrindavan, can you get me one deity of Krishna playing flute? I said, you don't worship Krishna alone. You need to have Radharani. Oh no, I dislike her. इसका मतलब क्या है पता है? वहाँ न्यूयॉर्क में गेलोड करके मैसूर उस समय रेस्टोरेंट था, तो कृष्ण को गेलोड बोलते। तो ये लोग ने समझा कि हमारे लिए हमारे लॉर्ड कृष्ण है, तो भगवान कृष्ण की ही मूर्ति चाहता था। तो फिर भी हम जब गए 1 घंटे में सीधे इस्कॉन पहुंच गए। तो चारे और पतरा इसके फोल्डिंग था, मंदिर कंस्ट्रक्शन चालू था, और आसपास तो कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन हम पीछे की साइड पे गए, तो इंटरनेशनल गेस्ट हाउस तैयार था, और वहाँ बीच में ही इस्कॉन प्रेसिडेंट गुणानंद प्रभु, मेरे गुरु भाई, ही वाज देयर। मैंने कहा मैं न्यूयॉर्क का लाइफ मेंबर हूँ, ये हूँ। अरे लाइफ मेंबर को तो 3 दिन की हम यहाँ रुकने की व्यवस्था करते हैं, आप आइए, चलो। कहाँ कपड़े हैं? कम भक्ति में बुल के आया वहाँ दिल्ली में। तो मैंने काफ़ी बहाने निकाले,
कि सॉरी आई कैन नॉट से, और बस पीछे हॉर्न लगाती थी। और मैंने वो मूर्ति भी खरीदनी थी बिना राधा रानी। तो गुणानव कहने लगे, इफ यू मिस दिस अपॉर्चुनिटी यू विल रिग्रेट। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे नसीब में रिग्रेट के अलावा कुछ है ही नहीं। एट दैट टाइम आई वाज अंडरस्टैंडिंग रिग्रेट फ्रॉम एवरी कॉर्नर। ठीक है, तो I said, what is the so great emphasis that you are telling? Prabhupada is coming tomorrow. Oh my God, there's no preparation for nothing. And the bus was honking. And मैंने बोला, देखो मेरे नसीब की तो ये पराकाष्ठा है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जितना सहन करोगे उतना लॉर्ड श्री कृष्ण और प्रभुपाद मर्सीफुल बनेंगे। तो इसी तरह हमने कहा कि सॉरी, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे लौटना भी है, 3-4 दिनों में लौटना है। हम तो गुजरात में रहते थे, कहाँ, अरे बम्बई से जाना, तो वहाँ जाओ सारे दिन खत्म हो जाएंगे। इसी तरह हम मूर्ति लेकर चले गए। कृष्ण भगवान की मूर्ति 8 इंच जैसी थी। हमने मार्शल को दे दी। हाँ, वो हमारा सेक्रेटरी मार्शल था, गे सेक्रेटरी मार्शल। He was very pleased. ओ तू लाया मेरे लिए? कहा। तुरंत उसने अपने इसमें से निकाल कर हमें 2 बैक टू गॉड हेड की जो साइक्लो स्टाइल कॉपियां थी ना, पहली फर्स्ट 2 issues he gave me gift। तो हमने न्यूयॉर्क में म्यूजियम में रखा। मगर ये तो मामूली चीज है, लेकिन इन लोगों से भी कृष्ण भावना कितनी आकर्षित बनी थी। वो हमारे नजदीक आसपास बहुत सारे ऐसे हरे कृष्ण के परिचित थे लोग। जब हमने दीक्षा दी और हमने निश्चय किया कि हमें ये रिसर्च छोड़नी पड़ेगी, तो हमने सचमुच बहुत सारी प्रवृत्ति से पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। उसमें कई बार झगड़ा भी होता था। You are trained to sacrifice animals. I said, I'm sorry, I'm withdrawing that. ठीक, जब से दीक्षा हुई हमने राम राम ही करती है। जो भी हैं, श्रील प्रभुपाद के परपट पर ज़्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। धोबी के कहने पर रामचंद्र जी ने सीता जब गर्भवती थी तब वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचाने के लिए लक्ष्मण को कह दिया। कितने निष्ठुर है रामचंद्र। वो तो सीता थी, अग्नि परीक्षा में से बाहर आई थी, और लव और कुश को अपने पेट में रखकर पालन करना, लेकिन ये काफी आवश्यक है। ये कोई निष्ठुरता का लक्ष्य नहीं है।
वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जो रामायण लिख रहे हैं, रामचंद्र जी के पहले से भी रामायण लिखी गई है। वो चरित्र तादृश करने के लिए रामचंद्र जी अपनी लीला कर रहे हैं और सीता माता इनके अनुरूप इनकी इच्छा की तृप्ति के लिए सब प्रकार के जो भौतिक दुनिया में स्त्रियों के जो वंचना होती है तो वो उसे ख्याल में रखकर सारी चीजें वो सहन करने के लिए तैयार है। लेकिन आप देखिए कि ज्यादातर स्त्रियों को मायके पहुंचा देते थे और वहाँ वो प्रसूति करती थी। प्रसूति के बाद 1.25 महीने के बाद भेजते थे। हमारे जीवन में भी ऐसा थोड़ा प्रसंग आया है कि जब हम 1.25 महीने के थे, हमारी माता कहती थी, तो वो उनके मायके से लेकर बस में हमें हमारे पिता के गांव ले जाती थी। 25-30 किलोमीटर होगा, ज़्यादा नहीं। लेकिन बीच में एक नदी आती थी, पुल नहीं था उस समय, तो पैसेंजर को उतर के जाना पड़ता था। मिंढोड़ा नदी। Okay. So I was being transported from Karot to Vyara. Okay. So during that time, वो बस में एक हमारे गांव के ही हमारे फादर टीचर थे, तो इनका शिष्य ही था। तो उसने मुझे उठा लिया मेरी माता को मदद करने के लिए। वो भी गांव छोड़ के चले गए। यहाँ वर्धा तक आए थे, विनोबा के आश्रम में भी रहे थे। फिर भी मन नहीं भरा तो सीधे गोवर्धन पहुंच गए। गोवर्धन में वो एक वैष्णव जिनका मंदिर है जो सामने, वहाँ से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और बाबा जी का जब हम वृंदावन 1992 के बाद आए और 93-94 में ही हमें भरतपुर शिफ्ट होना पड़ा। तो वहाँ अनाथ आश्रम इत्यादि का जो गौशाला के लिए वो ठाकुरदास बाबा जी के पास में गया। उन्होंने 4 गाय दान दी। करीबन इनके पास 600 गाय थी, लेकिन वो कत्ल खाने से जाने पर बचाने वाले थे। तो वो तो कोई दूध देती नहीं, कोई देती होगी, तो इसमें से कौन सी चूज करें। इनकी रक्षा करना ही तो भारे पड़ता है। तो इसीलिए नहीं, तो गुरुवार को आ, क्योंकि गुरुवार में मेला भरता है, गैया पशु का बिक्री होती, तो ब्याई हुई गायें ही खरीदते हैं, क्योंकि प्रूफ उस समय ही मिलेगा कि गाय दूध देगी। बछिया के साथ गाय उनकी बिक्री होती। वो पैसे भी 4 गायों के उन्होंने दिए हैं, तू ले जा। और उसमें साथ में एक ट्रॉली भर के सारे का चारा भी दिया। लेकिन हमने कुछ विचित्र देखा। तो हमने ठाकुरदास बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, हम जब गैया देख रहे थे कि कौन सी पसंद है कौन सी नहीं, तो वहाँ कई लोग गाय का मांस या कुछ पकाते थे, मांस इत्यादि। गोवर्धन में वो कहा, ये क्या बात है?
तो वो काफी गंभीर हुआ। इनका गुनाह नहीं है, इनका गुनाह नहीं है। वो कहते हैं हम बाहर से आते हैं, हम अपनी आदतें डालते हैं, उसके लिए कोई सफाई की जोगवाई नहीं करते हैं। न तो हम साफ होते हैं तो साफ दूसरों की सफाई कैसे करेंगे? स्वयं की सफाई होनी चाहिए। इनका गुनाह नहीं है। मुसलमान थे, बिक्री तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां मांस भी पकाते थे। तो हमें जरा ध्यानपूर्वक सुनना पड़ा कि रहस्य है। इसी तरह हर चीजों में दूसरों का गुनाह न निकालकर खुद का निकालना चाहिए। तो हम सब बाहरी हैं, हमारे दूषण से वृंदावन प्रदूषित हुआ है। हम अपने आप को कैसे, कहां, कब सफाई कर सकते हैं? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा सारी दुनिया में हरि नाम संकीर्तन फैलाने की, इससे बड़ी कृपा तो कहीं नहीं मिलेगी। हम अपनी सफाई करने के लिए बैठे हैं, और जिस तरह समझना है, जिस तरह हमारे में भी दिव्य व्यवहार हो आपस में, तभी दैवी वर्णाश्रम स्थापित होगा। नहीं तो वर्णाश्रम बाह्य, यही बाह्य, उसका भक्ति में समावेश होना तो दिव्यता का संचार होना ही चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हर एक मंदिर को आध्यात्मिक सेंटर बनाने का, भौतिक सेंटर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। सो इस तरह हम जब भक्ति में तत्व विचार इत्यादि प्रकट करते हैं तो उसमें दार्शनिकता भी होनी चाहिए, लाक्षणिकता भी होनी चाहिए, और भक्ति के लक्षण भक्तों में आए। कितने लक्षण बताए हैं? 26 क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। तो ये सब का हमें अभ्यास करके वो हमारे अंतर्गत हो, हमारे व्यवहार में हो, तब सब हो जाएगा। नहीं तो ISKCON भी एक मामूली संस्था बन जाएगी। भक्ति मामूली नहीं है, उसे कमजोर नहीं करना। उसके लिए भगवान जैसी ही जो स्वतंत्र अवस्था भक्ति की होती है, तो उसे ही तो भगवत प्राप्ति होती है। तो इन सारे प्रसंगों में हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। मजा तो आएगी सुनने के लिए, अपने ही दृष्टांत, अपने पर ही मजाक उड़ाना, बाद में देखो मैं मेरी मजाक उड़, दूसरों की नहीं उड़ाना। हंसी तो आपको आएगी, सही ना, लेकिन मेरी ही मजाक उड़ाता हूं। हम अपनी मजाक खुद उड़ाएं, दूसरों को उड़ाने की आवश्यकता नहीं रखें। नहीं तो अहंकार बीच में आता है। भक्ति आगे बढ़ाने के लिए ये सर्वोत्तम उपाय है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है? उसके पास भी है। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने जो कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं,
जो वास्तविक भगवान श्री कृष्ण हैं, तो उसी प्रकार हम जैसे देखते कि भगवान रामचंद्र जी जो कि अयोध्या धाम में रहते, तो वो भी इस तरह से आते? नहीं, हर बार आते। हर एक त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार होता। कृष्ण भगवान स्वयं ब्रह्मा के 12 घंटे में दिन में ही एक बार आते हैं। स्पेसिफिक टाइम दिया है। 1000 युग में एक बार, 1000 महायुग, 4 का एक महायुग बनता है, तो एक बार, हाँ, 1000 महायुग में एक ही बार। तो हम लोग कितने सद्भागी हैं, लेकिन बेवकूफ रहना तो हमारी आदत बनी है। अक्लमंदी कब आएगी? जो हमें जानना होता है वो जानते नहीं। अनावश्यक कथाएं क्या असर करेगी? असर तो समझदारी। हम हर बार कहते हैं कथा, जब कथा श्रवण, तो कथा सुनी सुनी फूटे कान तो ये ना आयु ब्रह्म ज्ञान। कान फूट जाते हैं। कान फूटना यानी कि बेहरा हो जाते फिर भी हमें जो ज्ञान प्राप्त होना है वो नहीं आता, तो फायदा क्या? वही तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कह रहे हैं। हाँ। लेकिन परीक्षित भक्त है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। दूसरों को नैष्ठि भक्ति होती ही नहीं, क्योंकि नित्यम नहीं करते, इसलिए। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, जैसे हम कहते हैं कि कृष्ण के 64 गुण है, 64 क्वालिटीज, तो वैसे प्रभु रामचंद्र जी इनकी भी 64 क्वालिटीज है क्या? 64 गुण पूर्णतया किसकी है? कला नियमेन तिष्ठन्। इसका मतलब क्या है? रामादि मूर्तिषु कृष्ण इज नॉट ए मूर्ति। रामादि मूर्तिषु मैनिफेस्टेशन है। तो हर एक अवतार में और जिनके अवतार हैं उसमें दूसरों में अंतर क्या होगा? पर फिर भी जो जितना सिखाना चाहते हैं वो तो मर्यादा में ही करेंगे ना। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने मनुष्यों के लिए जो मर्यादा बनाई है वो बहुत आवश्यक है। इसलिए खुद ने मर्यादा का पालन किया। हर एक चीज में मर्यादा, हर एक चीज में हम उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। पिता के वचनों का उल्लंघन नहीं कर सकते, मर्यादा में रहो। उनका आदेश हमारे लिए हितकारी है। वनवास तो नहीं भेजेंगे हमारे पिता, क्योंकि उनको भी लगाव है। बच गए ना। दशरथ महाराज को तो परवशता से अपने बेटे को वनवास देना पड़ा, लाचारी से। ऐसी लाचारी कोई नहीं अनुभव करता। जो मर्यादा होनी चाहिए वो मर्यादा, हम तो सभी सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं।
यदि एक पत्नी व्रत है, हाँ, तभी तो ये 50th एनिवर्सरी मैरिज की कर पाते हैं और केक कटवाते हैं हमसे। महाराज जी के आपके आशीर्वाद है। All right, Srila Prabhupada. Yes. Have to be understood, practiced, and transformed. Otherwise, ISKCON will be also one more organization. So repeat, please. Yeah, you mentioned a very nice point today, that the 26 qualities which was mentioned in Bhagavad Gita, it has to be understood, practiced, and transformed in our life. Otherwise, ISKCON will become like one more organization. That was a very, very... Srila Prabhupada's mercy that we are still existing. Yes. We try to follow him and he will be there. He prays to Lord Krishna that he has started this movement for his glorification. So, he is the mover for the movement. We simply have to cooperate. Yeah. And the last point I didn't understand was in Hindi, that you told that Maja udahna to. So that point, can you tell me in English? The Maja udahna to khud ka maja. So can you tell me? You told that it's a very important point. That will control our ego. You told me that was so. मुझे एक प्रसंग याद है बचपन में, हाँ, जो हमने नासमझ होकर हो गई बेवकूफी। पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जब क्लास में होते हैं तो खेलते कूदते हैं, उनको पता नहीं कि डिसिप्लिन क्या है। बैठे बैठे भी लाइन में बैठना होता है, सब कुछ करेंगे, पर फिर भी आदत होती है तो कुछ ना कुछ करते हैं। तो एक बार हम पकड़े गए। तो पनिशमेंट के लिए हमें बुलवाया, चला आओ सजना, ऐसे करो, गधे के कान लगाओ, खोल के सुनो। आधा घंटा में तो थक गए। मैंने बोला इतना करा नहीं, इससे थोड़ी मजाक की, उसमें इतना पनिशमेंट कि हाँ। We are nothing but punishable entities. हमेशा माफी मांगना सीखो। ओम अज्ञानाद अथवा अज्ञानाद अशुभम यन्मया कृतम तत्सर्वं क्षमस्व मे मधुसूदन। प्रतिज्ञा तव गोविंद, बहाना निकाला, देखो। न मैं भक्त प्रणश्यते इति संस्मृति। संस्मृति पॉलिटिक्स है ना? तो हम जल्दी तो भूलते नहीं, बारंबार हर रोज माफी मांगनी पड़ती है पुजारी को हमेशा, फिर भी गलती हो जाती है। पर संस्मृति तो ये रहा, प्रतिज्ञा तो गोविंद न मैं भक्त प्रणश्यति संस्मृति प्राणाम समत्यार्य। तो अपने मन में ही बनाए रखना होता है। हाँ, अपने बेवकूफ़ी से हम ही शर्मिंदा होना होता है। लेकिन मजाक करोगे तो शर्म चली जाएगी। इट विल बी एन इजी एक्सपीरियंस, है ना? ऑलराइट, थैंक यू गुरु महाराज। यस, महाराज, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि राम भक्त और कृष्ण भक्त फाइट करते रहते, उनका मेन रीजन क्या है फाइट करने का? वो जानते हैं कि वो विष्णु के इनकारनेशन है, फिर भी वो फाइट क्यों करते? बेवकूफी। हमारे में 4 डिफेक्ट है ना।
कौन कौन सी है पता है? हम परफेक्ट नहीं है। तुम परफेक्ट हो तो फिर लेकिन प्रभुपाद जी के परफेक्ट बनो, कैसे बनोगे? Always remain in contact with perfect, all perfect supreme personality of Godhead, है ना? नहीं तो गलती करते ही रहेंगे। We have imperfect, हमारी इंद्रियां अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण इंद्रियों को इकट्ठी करके पूर्णता कभी आती ही नहीं। पूर्ण के साथ हमें और टच में, संपर्क में रहना होता है। वाणी या वपु दोनों। वाणी यानी कि उनका कहा सुनना, वो भी पूर्णता का परिचय करवाता है। और स्वतः यदि है तो उनकी सेवा द्वारा हम उनके संपर्क में बने रहते हैं। दूसरी डिफेक्ट क्या है? गलती करते हैं। अपूर्ण इंद्रियों से गलती ही होगी। और तीसरा ये माया है, उल्टा प्रतिबिंब है, लेकिन हमें उसे सुलटा दिखने की ही आदत है। वो 15वें अध्याय में आप पढ़ोगे, और झूठ बोलते हैं। कोई सत्यवादी है यहां? हाथ ऊंचा करो। कोई किसी कभी उसने झूठ नहीं बोला ऐसा हाथ ऊंचा करो। कोई है? जरा मूर्ति तो बताओ। तूने कभी झूठ बोला? हाँ। यही परेशानी है। प्रभुपाद कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक सॉकेट होता है उसमें उंगली डालो। शरारत करने की आदत है, लेकिन उंगली डालो, शौक लगेगा। सही? तो दूसरा कोई छुएगा तो उसे भी शौक लगेगा। तीसरा उसको कोई छुएगा तो उसको भी शौक लगेगा। तो इसी तरह भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं। उनके संपर्क में प्रभुपाद है, प्रभुपाद के संपर्क में इनके शिष्य हैं, और इनके शिष्यों के शिष्यों प्रशिष्यों के संपर्क में भी इसी तरह हमेशा परंपरा चालू रहती है। नहीं तो उंगली से हाथ निकल जाएगा। यदि प्रभुपाद से ही उंगली छोड़ देते हैं तो ऋत्विक बन जाएंगे। नहीं गया ना खोपड़ी में? समझा? ऋत्विक को जानते हैं? ये वही तो मैं कह रहा हूं कि खोपड़ी में नहीं गया। जब प्रभुपाद से उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी, स्विच ऑफ कर दी, और स्विच ऑफ करके इनकी परंपरा अटक जाती। किसी को शौक नहीं लगेगा। सिर्फ भक्तों को ही लगेगा। Alright. Thank you, Guru Maharaj, for wonderful class. How to remain like 24 hours integrity, like sincere?
always. Man mana bhava mad bhakto madhyaji mam namaskuru 24 hours. But it's for 24 hours, it's like mobile is there and something is there. So नहीं, मन में तो 24 hours रह सकते हैं ना, तो वाचा में भी 24 hours रह सकते हैं और कर्मणा में भी। आपका सारा एग्जिस्टेंस आ गया 24 hours. By mind, words and activities, we have to remain in Krishna consciousness. ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है भैया। पार्ट टाइम थोका है, गेरुआ पार्ट टाइम हो सकता है, but Krishna consciousness is not a part-time job, full-time. हरिदास का full-time job कैसा था? इसीलिए तो अपने ये परंपरा में सारे एग्जाम्पल हैं कि देखो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं। हमारे पास तो थोड़ी जॉब एक ही जॉब करते हैं तो उसमें भी हमें परेशानियां आती हैं, थक जाते हैं, रेस्ट लेना पड़ता है। हरिदास ने तो एक ही पार्ट टाइम जॉब नहीं, फुल टाइम लिया था, एक ही जॉब। तो एक जॉब करके, हमें तो कितने सारे जॉब होते हैं, वो भी, लेकिन 24 आवर्स तो होना ही चाहिए ना। वो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, ये सब करने को कहा। उसमें एक भी फुल टाइम जॉब हो जाए वो भी सफलता देगा, गारंटी। प्रहलाद महाराज ने फुल टाइम जॉब किया था, कौन सा था? स्मरण भक्ति। परीक्षित महाराज ने तो फुल टाइम था ना कि पार्ट टाइम था? ठीक, समझ गए? गुड बॉय, यस, वहां पहुंचा दो भाई। महाराज जी, हम नासिक तीर्थ स्थान में रहते हैं, धाम में रहते हैं। नाकटी तो मुझे मेरा ये प्रश्न है कि हम कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तीर्थ स्थान है प्रभु रामचंद्र जी का। चैतन्य महाप्रभु इधर आके गए, प्रभुपाद जी और बहुत सारे इस प्रभुपाद के शिष्य भी आते हैं। मेनली मुझे ये पूछना कि एक तीर्थ स्थान है, व्हाट आर ऑल दोज थिंग्स वी शुड take care by which we should not commit some mistake or not take it cheaply, this dham? नहीं, दुर्घटना घटी तो कब? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हाँ, तो सावधानी से हमें क्या करना चाहिए? 108 बुलेट वाली मशीन गन दी है, सुरक्षा का साधन है, यही काफी है। दूसरा तो अपनी इच्छा के अनुसार जब मौका मिलता है तब करनी पड़े, है ना? एक आर्मी का जवान 1728 गोली भी नहीं छोड़ता दिन में। हमें तो छोड़नी पड़ती है।
और हमें ही लगानी पड़ती है। दूसरों को लगे ना लगे, हमें तो खुद लगनी ही चाहिए। चलो प्रभुपाद की। परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज की। तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि जितनी हम एक तप में 12 साल में तपस्या करके, ध्यान करके, योग करके, मंत्र तंत्र करके जो हासिल नहीं करते, लव मात्र सारु संग सर्व सिद्धि है। गुरु महाराज ने कम से कम समय में हमारे जो तत्व के बारे में अज्ञान था, प्रभु राम और कृष्ण, इनके बीच का डिफरेंशिएशन और किस प्रकार से इस नासिक धाम में पंचवटी में प्रभु रामचंद्र विलाप कर रहे थे सीता के लिए, और सुखदेव गोस्वामी कहते कि ये हैंडपैक्ड हस्बैंड है। और चक्रवर्ती पाद की टीका की कमेंट्री लेके प्रभुपाद जी और महाराज जी ने समझाया कि भक्त अवश्यता है, इसके लिए भगवान रो रहे। तो जो गूढ़ तत्वों को प्रभु राम के, सीता के और कृष्ण के और गुरु के तत्वों को और आखिरी में नाम तत्वों को महाराज जी ने जो समझाया है, हम यही प्रार्थना करेंगे इनके शब्द हमेशा हमारे हृदय में बसे रहे, ताकि जब भी हम साधना करें, सेवा करें, तो उसी तत्वों को लेते हुए, ध्यान में रखते हुए हम करें। तो महाराज जी को हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और क्योंकि गुरु महाराज जी यहाँ पे पधारे, क्योंकि उनके सारे ये भक्तगण कोई न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से यहाँ पे पधारे, इसके लिए गुरु महाराज यहाँ पे पधारे। तो सारे यहाँ के जो सीनियर भक्त हैं उनको भी हम धन्यवाद देंगे कि आप यहाँ पे रुके और हमें ये सत्संग का लाभ दिया, सेवा का लाभ दिया। 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सो महाराष्ट्र दर्शन यात्रा का ये सबसे पहला मेजर स्टॉप था और कल का दिन काफ़ी हेक्टिक था एंड आई वाज वेरी मच नर्वस। लेकिन यहाँ के भक्तों ने जिस तरह से शुरू से यात्रा के ऑर्गेनाइजेशन से अब तक जो सहकार हमें प्राप्त हुआ है, वो हम उसे भूल नहीं सकते। तो मैं सारे भक्तों को यहाँ पे एक के बाद एक बुलाऊंगा और महाराज अपने हाथों से महाराज की गाई हुई जो सीढ़ी जो है, भजन की सीढ़ी, वो अपने एक्चुअली हाथ से देंगे। अभी जब भी मैं यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आया था तो नरसिम्हा कृपा प्रभु और सहस्त्र शिष्य प्रभु से हम मिले थे और प्रसाद के बारे में चर्चा हुआ था, आइटिनरी कैसे नासिक का सेट करना, वो सारी चीज़ें हुई थी डिस्कस। तो ऐसा लगता है कि आसित आराध्य प्रभु बहुत मैसेजेस भेजते हैं, ये प्लानिंग वगैरह करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली कुछ नहीं करता। मैं सिर्फ अपना मोबाइल में कुछ लिख करके भेज देता हूँ, लेकिन ये सारा संचार जो है, जो दोहरी संचार जो पीछे से कर रहे हैं, ये सब ये भक्त है। तो ये भक्तों के लिए जोर से हरि बोल बोलिएगा, हरे बोल, हरि बोल, हरे बोल। सो सहस्त्र शिष्य प्रभु से करते हैं शुरू। यहाँ से नासिक से मैं औरंगाबाद गया तो औरंगाबाद के भक्त मुझे पता है क्या उन्होंने सवाल पूछा कि प्रभु जी औरंगाबाद तो प्रसाद के लिए पूरे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। मैंने बोला अच्छा, अभी हाँ हाँ सो फिर उन्होंने बताया कि आप की यात्रा का क्या रूट क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, आप पूना से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बोला हम पूना से चाकन जा रहे हैं, देव होकर के हम नासिक जा रहे हैं और नासिक से औरंगाबाद आ रहे हैं। तो जैसा मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि नासिक के अंदर प्रसाद का आयोजन कौन कर रहा है। तो मैंने कहा सहस्त्र शिष्य प्रभु कर रहे हैं। तो वो तो बेचारे एकदम जो है वो एकदम थोड़े से नर्वस हो गए। मैंने बोला क्या हुआ। तो आप नासिक का प्रसाद खा करके आओगे तो फिर हम आपको क्या खिलाएंगे। सो सहस्त्र शिष्य प्रभु ने जिस तरह से मेरे बनाए हुए मेनू को उलट पलट कर दिया। मैंने कुछ लिख करके बोला और उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, ये करो ये करो ये करो करके उन्होंने इतना सुंदर प्रसाद बनाया। एकादशी का प्रसाद इतना सुंदर प्रसाद बनाया, कल का लंच इतना सुंदर बनाया, समोसा चाट खा करके लोग बोल रहे थे बहुत सुंदर था, खिचड़ी बहुत सुंदर थी। अब मैं अभी है यहाँ पे 25 समोसे है अभी। और अभी आप उपमा और सेव वगैरह सब खाने वाले हैं कि नहीं। सो सहस्त्र शिष्य प्रभु ने कल
हम लोग त्रंबक, इतना हेक्टिक डे था, हम लोगों ने कल एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीट एकम्प्लिश किया है। मुझे लगता है कि बहुत कम यात्रा ऐसी होगी जो पंचवटी, तपोवन, बाद में ताकेद और त्र्यंबकेश्वर और कुशावृता तीर्थ, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक दिन के अंदर ये सब कवर कर पाएगा, लेकिन ये भक्तों की कृपा से ये हुआ। और ख़ास करके सरस्वती से प्रभु होटल के अंदर मैनेजर के साथ नेगोशिएट करके हमारे लिए टेबल वेबल सेटअप करके हमको 10:30 बजे समोसा चाट खिलाया। मैं सोच रहा था कोई खाएगा नहीं, लेकिन मुझे लगा 50 से 60 भक्त तो कम से कम थे और सबने बहुत अच्छी तरह से अप्रिशिएट किया। तो सरस्वती सा प्रभु और उनकी टीम के लिए जोरदार हरि बोल बोलिए। सीढ़ी महाराज के हाथ से परंपरा मेलोस की सीढ़ी प्राप्त करेंगे गिफ्ट के रूप में। नरसिम्हा कृपा प्रभु ने पूरी आइटिनरी का आयोजन किया हमारे लिए, और मैं उनको बोलता रहा कि ये 4 प्लेस कैसे करेंगे, और इसमें से कुछ छूट तो नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, टेक इट वेरी इजीली, अगर कुछ छूटना पड़ेगा तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये सारे के सारे करने हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा आइटिनरी हमको सेटअप करके दिया। पहले हम सुबह में त्रंबक जाने वाले थे, लेकिन इट वॉज हिज सजेशन टू गो टू ताकेत। अगर समझिए, अगर हम त्रंबक गए होते, कुशावृता के अंदर हमने स्नान किया होता और हम 6 बजे यहाँ पे आते और प्रसाद लेते, तो वी वुड नेवर हैव गॉन टू ताकेत। सो थैंक्स टू हिम वी कवर्ड ऑल द प्लेसेस। ही केम फॉर द कथा, और रात को 8 से 9 के बीच में मुझे कोई होप नहीं था कि कोई आएगा, लेकिन बहुत सारे भक्त आए थे और उन्होंने इतना सुंदर प्रयोजन किया था कि जो स्थल आप देखने वाले हैं ना, उसके बारे में पहले दिन आप जान लो, ताकि वहाँ पे जाओगे तो अच्छी तरह से उसे देख पाओगे और समझ पाओगे। तो हम नरसिम्हा कृपा प्रभु की विशेष कृपा के लिए उनका अभिवादन करेंगे हरि बोल बोल करके। महाराज के हाथ से सीढ़ी प्राप्त करेंगे। जय। नासिक के कांग्रेगेशन के एक भक्त ने, ही स्पेशली टच माय हार्ट। सो पंचवटी और तपोवन के अंदर जब हम जा रहे थे तो, प्लीज कम, रसिक गोविंदा प्रभु प्लीज कम। ही इज अ मैन बिहाइंड द होल ऑर्गेनाइजेशन। इनके सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से फॉलो करते हुए, सब भक्तों को गाइड करते हुए, बस ड्राइवर के साथ बात करते हुए, साउंड सिस्टम को लाते हुए, इधर से उधर ये भाग रहे थे, इधर से उधर ये एक्चुअली भाग रहे। और सीता गुफा सुबह कभी भी आज नासिक के अंदर हिस्ट्री ये हुआ कि सीता गुफा कभी भी सुबह कितने बजे, 6 बजे कभी ओपन नहीं होती, लेकिन इन्होंने जाकर के पुजारी को उठा करके बुलाया, इतने सारे भक्त हैं, गुफा को खोल दो, तो उन्होंने खोल दिया। तो एक स्पेशल पोटेंसी है। ही हैज रियली टच माय हार्ट। सो ये रसिक गोविंदा प्रभु की आप खासियत हमारे यहाँ के लोग तो जानते हैं, लेकिन यात्रा के लोग नहीं जानते हुए, ये एमए के अंदर इन्होंने संस्कृत किया है। तो मैंने इनको कहा, मैंने उनको पूछा कि मुझे इतना सिखा दो कि मुझे अपना नाम संस्कृत में बोलना है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। भगवत गीता के श्लोक को कंठस्थ करना ईजी है, हाँ, लेकिन भगवान के बोले हुए संस्कृत के श्लोकों को कंठस्थ करना इजी है। और इन्होंने मुझे कम से कम 4-5 दफ़े बताया, लेकिन मैं अभी तक समझ नहीं पाया। तो इतने बड़े विद्वान है, इतना सिंपल, और ये बहुत ही हम्बल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही सुंदर वैष्णव है। इनके लिए प्लीज जरा जोर से अभिवादन कीजिए। हरिवल सीढ़ी प्राप्त कीजिए महाराज जी के हाथों से। Krishna Prabhu, right? And finally, the authority of the Nasik temple is His Grace Krishnadan Prabhu, जो कि जिनके साथ मैं इतना एक्टिव संपर्क में नहीं था, लेकिन इनके हाथ के अंदर, इनकी लीडरशिप के अंदर ये मंदिर का आयोजन इतना अच्छी तरह से स्मूथली होता है। ये मैनेजमेंट का भी एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। ये सारे भक्त इतना कांग्रेगेशन का अच्छी तरह से सेवा करते हैं, लेकिन इनका श्रेय जो है, राइट, he gets 50% of the credit of what they do. So Krishnadan Prabhu, please आइए यहाँ पे। He is a temple president of Nasik temple. Thank you Prabhu for making our stay very memorable here in Nasik. Yeah. अच्युत प्राण प्रभु नहीं है अभी? अच्युत प्राण प्रभु हमारे साथ कल आए थे
ताकत के अंदर, और ताकत के अंदर आकर के उन्होंने एक सीक्रेट हमको बता दिया जो उनको शायद एक्चुअली बताना ही चाहिए था। उन्होंने कहा कि प्रभु जी यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप नीचे घुस करके हाथ डालोगे तो शिवलिंग आएगा हाथ में, जाकर के उसका एक्चुअली अभिषेक कीजिए और बाद में डाल दीजिए तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि महाराज तो ये कर नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा कि ये किसी को करना नहीं है। मैंने बोला किसी को आप बताइए नहीं, मैं जाकर के उठाता हूँ शिवलिंग। तो मैं जाकर के अंदर घुसा, लेकिन शिवलिंग को छू ही नहीं पाया और बहुत सारे भक्तों ने आकर के उठा दिया। बाद में क्या हुआ, मैंने बोला कि इनकी तो इच्छा सारी पूरी हो गई, मेरा क्या होगा। तो ये लोग जब गए ना तो वापस मैंने ट्राई किया, लेकिन वापस भी मैं छू नहीं पाया। मैंने बोला चलो लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा हमको बताया और वहाँ पे ताकत के बारे में उन्होंने कथा भी किया, तो उसके लिए हम उनका भी अभिवादन करते हैं और उनके लिए महाराज के हाथ से सीढ़ी आपके पास छोड़ करके जाते हैं। अच्युत प्राण नहीं, प्रभु नहीं है। तो नासिक का स्टे हमारे लिए काफ़ी मेमोरेबल रहेगा। और अभी औरंगाबाद जा रहे हैं, 2 दिन का स्टे है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कथा भी होने वाली है। औरंगाबाद ने प्रेस रिलीज किया है, मेरे ख्याल से औरंगाबाद के जितने भी न्यूज़पेपर है ना उसमें से एक भी बचा नहीं है। तो 22 को महाराज का स्वागत किया जाएगा और वहाँ पे कथा भी होगी। फिर जा रहे हैं कौंडिन्यपुर जा रहे हैं। कौंडिन्यपुर से नांदेड़ के आजू बाजू में औंध नागनाथ और पदली वैद्यनाथ है, उनके दर्शन करते हुए सोलापुर होकर के पंढरपुर पहुँचेंगे। पंढरपुर से आरोड़े होकर के कोल्हापुर जाएंगे। कोल्हापुर में माता का दर्शन करके फिर सतारा होकर के महाबलेश्वर जाएंगे और उधर से फिर पुणे आएंगे। तो ये बहुत ही एडवेंचरस महाराष्ट्र दर्शन यात्रा है। सोलापुर में जाकर के पिज़्ज़ा खाना है। महाराज की शिष्या है, उसने पिज़्ज़ा पार्लर खोला है। सो मैं तो एकदम नर्वस हो गया। मैंने उनको कहा कि यार आप क्या खिलाने वाले हो, तो बोले कि पिज़्ज़ा खिलाएंगे, पाव वड़ा खिलाएंगे यहाँ का, एक अपना मोमो ड्रिंक बनाए, वो अपना क्या बोले मॉकटेल ड्रिंक बनाएंगे। मैंने बोला एक काम करो, सोलापुर में ट्रैफिक बहुत होता है, पंढरपुर के अंदर आकर के सर्व करो। तो वो लोग वहाँ पे गए थे, लेकिन पंढरपुर के अंदर बोला जमेगा नहीं, आपको यहीं पे ही आकर के लेना पड़ेगा। तो बहुत ही एक्साइटिंग यात्रा है। आज नासिक के अंदर हमारी 25% यात्रा खत्म हो गई है। बाकी के कौंडिन्यपुर से निकलेंगे तो 50% खत्म हो जाएगी। 3 दिन के बाद में 50% खत्म होगी। सो वी आर वेरी एक्साइटिंग डेज अहेड। तो नासिक कांग्रेगेशन का हम अभिवादन करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव गिवन एंड चैंट हरि बोल फॉर नासिक कांग्रेगेशन अगेन। थैंक यू। सो वी नाउ प्रोसीड फॉर अ ब्रेकफास्ट। 1 मिनट। जनेश्वर प्रभु हमारे मेलबर्न कांग्रेगेशन के अंदर गॉड फैमिली के लीडर है और एक सेवा जो कंसिस्टेंटली चल रही है। हर वक्त महाराज जब भी मेलबर्न में जाते हैं तो वहाँ पे जो सीढ़ी वगैरह बनती है उसके बारे में वो आपको अवगत कराएंगे। जनेश्वर प्रभु प्लीज कम। हरे कृष्णा। गुड वेरी क्विक। ये जो आप म्यूजिक एल्बम्स जो देख रहे हैं, मेनी ऑफ यू डोंट नो दैट महाराज इज़ अ वेरी नाइस सिंगर टू। ऐसे क्लासिकल सिंगर महाराज बोलते हैं कि नहीं, बट यू will only realize if you happen to listen to some of his albums, क्योंकि वो नासिक के अंदर अभी पहुंच नहीं पाए, but by the mercy of Guru Maharaj and Asitarthi Prabhu we are able to do this Maharashtra Yatra. So just we only could carry few. Basically is originated from Melbourne कि Maharaj एक he used to do the what do you call the bhajan sandhya. Then महाराज इतने ऊंचे से आवाज़ निकाले कि nobody could match. And then एक कांग्रेगेशन माता जी आके मुझे सुना कि प्रभु इसको रिकॉर्ड करके आपको शेयर करना चाहिए. And then when same request went to महाराज से, सब को लोग बोलते हैं लेकिन करते कोई नहीं. And that somehow sat in my brain that we have to do something. But this has to be done professionally. You can, Maharaj sings everywhere in general. All these albums, so by the time महाराज का next visit जो था 2016 में, we made all the research and we had हमें तो L board था, we didn't know anything about the albums, so started from scratch, hired a
studio, got the congregational devotees, all the professional players, sitar, tabla. महाराज बोलते कि इसको कुछ गायन भजन ऐसा है कि मृदंग नहीं टिकता. Maharaj himself is a tabla player, for those of you who don't know. So we had to hire a tabla player. And we had to do a lot of juggling around. But abhi kafi experience aa gaya hai after 5 albums. So we had about 5 albums. There is albums available for those who would like to come and buy. The main purpose of this is all the donations are going to TOVP. You can see on the behind here, the project is funded by Melbourne, made in Melbourne devotees, produced there, and iska edit bhi a devotee ki hai. So everything is done by the devotees, apart from the studio, of course. So any donations which is going towards this will go to the TOVP constructions, which is still happening for the. So we started from the 50th year anniversary. So abhi tak 4 albums aa gaye, and some albums are available in USB format also. So first few albums are here. So those who are interested can come. We also have what's called download cards. So this is called one times. So this is very easy accessible. Lakshmi also is very minimal donation, like anyway 100, 200 rupees is okay. But CDs are, our production cost itself is high, so we have to keep a minimum standard. So you can come and contact us before we have breakfast. We are supposed to leave plan was to leave by 8 o'clock, now it's going to be around 8:30. So you can, aap aake mujhe mil sakte hai, and then you can, the beauty of the CD what's given to all the nice congregational devotees is called Parampara Mellows, which is our second album. This has got 4 songs only, and they are very long. The beauty of this is that Srila Prabhupada only wrote 2 songs in his lifetime, and Srila Bhakti, there are some others, but we choose 2, and Srila Bhakti Siddhanta Maharaj's 2 albums, which are very unique. Krishna Tava Punya Habe Bhai, Boro Krupa Koile Krishna, and Krishna Hoite Chaturmukha, and Dushta Mana. And this is a very wonderful where Bhakti Siddhanta Maharaj said about the mind. Many of you would have heard in the lectures, but they are all coming from these albums. So yeah, you're more than welcome to contact me, and I'll be here for the next 10 minutes. So thank you very much. Hare Krishna, Maharashtra Darshan Yatra ke devotees, please, before you take the breakfast, just go where the luggage is lying, pick up your luggage and put in front of your bus so that it can be correctly loaded. क्योंकि I am going to make room allocation on the basis of one principle कि एक होटल के ऊपर एक ही बस जाएगी. दूसरी बस में आपने अगर अपना लगेज डाल दिया तो आप कपड़े ढूंढते रह जाओगे. ठीक है? So just make sure you identify your bag very correctly and put in front of your bus. प्रभु जी आप कुछ कहना चाहते हैं? परम पूज्य गुरु महाराज यहाँ पे आए. महाराज जी आप आए थे 2002 के कुंभ मेला में. Yeah, that time you came here. I was very young that time, but I remember you gave class also in the evening at congregation place. और उस समय ज़्यादा संपर्क हुआ नहीं, और आप क्या बात कर रहे, क्या कथा कह रहे, वो कुछ भी पता नहीं था, कि बहुत नया नया था मैं और छोटा था बहुत. लेकिन आज जब आपकी वाणी सुनी तो जो तत्वों को आप प्रकाशित कर रहे भक्तों के सामने, ये गौड़ीय परंपरा को आप जो प्रस्तुत कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं. और नासिक मंदिर की ओर से मैं हमारे अध्यक्ष कृष्णधन प्रभु से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक छोटा सा गिफ्ट मंदिर की ओर से महाराज जी को हम देना चाहेंगे. उनके आशीर्वाद हम सब देना चाहेंगे. तो राधा मदन गोपाल जी, और एक सेवा भूल गए हमारे भक्तों की कि महाराज जी का डाइट थोड़ा अलग है, क्योंकि महाराज हेवी डायबिटिक पेशेंट है. इंसुलिन देने के बाद ही उनको प्रसाद ग्रहण करने की अनुमति होती है. और इसके लिए महाराज जी को समोसा नहीं खिलाया, भक्तों ने छुपा के रखा उनके सामने. तो महाराज जी का डाइट जो पूरा ऑर्गेनाइज किया उत्तम भक्ति प्रो उनके ग्रुप ने किया, और वो माता जी लोगों ने किया, तो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल.
2-3 हम दे देंगे प्रभु जी के पास, उनके हस्बैंड है यहाँ पे। माता जी है? माता जी, मधुरा भक्ति माता जी है क्या? हाँ है, दोनों है माता जी, दोनों आइए आप। गौरी कृपा माता जी आप, हाँ गौरी कृपा माता जी, मधुरा भक्ति माता जी। तो इन्होंने महाराज जी के लिए स्पेशल, क्योंकि ये किचन पूरा बिजी था, लोडेड था सारे भक्तों का प्रसाद बनाने के लिए, तो अलग से इन्होंने अपने घर पे अरेंजमेंट करके बहुत सुंदर प्रसाद महाराज जी को ऑफर किया, ताकि उनकी हेल्थ भी बनी रहे। तुलसी देविका माता जी, 3 माता जी यहाँ पे आइए माता जी। हरि वो, हरि वो। हरि वो। गौरी कृपा माता जी, दिस इज गौरी कृपा माता जी, मधुरा भक्ति माता जी और तुलसी सेविका माता जी। हरि वो। और हम क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि वी आर इनएक्सपीरियंस गुरु महाराज, कुछ भी हमसे कुछ गलती हुआ होगा, भक्तों की सेवा में अपराध कुछ हुआ होगा, तो हम हृदय से क्षमा चाहते हैं। और हमारी खुद की मजाक उड़ाना हम सीखेंगे गुरु महाराज, आपने बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दी। दूसरे मजाक उड़ाने से पहले खुद ही अपनी मजाक उड़ा लो। इस बात को हम कभी नहीं भूलेंगे महाराज जी, थैंक यू। परम पूज्य वेद व्यास प्रिय स्वामी गुरु महाराज की, मेलबर्न, न्यूजीलैंड, इंडिया भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद, अमेरिका भक्त वृंद की, ऑस्ट्रेलिया भक्त वृंद की जय।